So चलिए let's solve some more numerical on mole concept. And before starting that एक quick revision कर लेते हैं mole concept के जो basics की. The relationship of mole, various relationships of mole that I discussed in the previous video. Let us have a quick revision of that. So 1 mole is related to number of particles as 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 particles, which may be atoms or molecules, right? इसके अलावा 1 mole is related to volume of a gas which is equal to 22.4 liter of any gas at STP or NTP, right? And in terms of weight or mass, mole is related to atomic mass or molecular mass, depending upon we are talking about atoms or we are talking about molecules. So these are the relationships of mole जो हमें use करने होते हैं while solving the numerical on mole concept. अभी एक one more important thing that I wanted to discuss is एक और चीज मैंने notice की है that children have a little confusion when it comes to atomic masses or molecular masses. देखिए जब हम कोई न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें नीचे दे दिया होता है एटॉमिक मास. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 या हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 या कैल्शियम इज इक्वल टू 40. हमें ऐसे दिया होता है एटॉमिक मास, ठीक है. और हम इसी पे बेस्ड अपने मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो मैं क्या करती हूँ, I use the atomic mass of hydrogen multiplied by 2 because दो हाइड्रोजन एटम्स है वाटर के अंदर और 16 ऐड कर दिया इसमें because there is one atom of oxygen in one molecule of water, so ये हो जाता है 18. अब जो ये वैल्यूज होती हैं एटॉमिक मासेस की या मॉलिक्यूलर मासेस की, ये हम ग्राम्स में लेते हैं जनरली. हमें गिवन नहीं होता बट वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 16 ग्राम. इन केस ऑफ ऑक्सीजन it is equal to 1 gram. In case of hydrogen it is 40 gram. In case of calcium, right? Similarly if I talk about molecular mass, तो अगर मैं molecular mass of water की बात कर रही हूँ, so if it is 18 we take it as 18 gram. so ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि जो ये मास है, ये जो मास है, एंड आपको पता भी है कि जब हम ऐसे ग्राम पीछे लिख रहे हैं 18 ग्राम, 1 ग्राम, 40 ग्राम, कार्बन के लिए 12 ग्राम, सो दिस इज दी मोलर मास, मतलब ये 1 मोल का मास है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन then 16 gram is what? It is the mass of 1 mole atoms of oxygen, right? Which is equal to 16 gram. In the same way, if I talk about hydrogen, then if I say 1 gram, then mass of 1 mole atoms of hydrogen is equal to 1 gram. Likewise calcium के लिए. अभी in the same way अगर मैं water की बात कर रही हूँ, and if I say molecular mass of water is 18 gram, so 18 gram is what? 18 gram is the molecular mass of what? Molecular mass of 1 mole water molecules, right? यही होता है. लेकिन आपने कहीं बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल में नीचे देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU, मतलब इसके जो पीछे यूनिट्स होते हैं दे आर AMU. हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU. वाटर का molecular mass is equal to 18 AMU. So what is this AMU? और ये कैसे पॉसिबल है कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम इसका एटॉमिक मास है बट 16 AMU भी इसका एटॉमिक मास है.
सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर, एंड आई नो बहुतों को ये बात पता भी होगी, बट फॉर दोस्त जिनको इसमें कभी डाउट होता है 16 AMU और 16 ग्राम में, या 1 AMU और 1 ग्राम में, सो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ बिफोर मूविंग अहेड। सो एक बार इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं AMU एंड ग्राम्स की। सो I'll erase the stuff over here, just a second. Okay, तो चलिए let's start. Now if I talk about, I'm taking the case of oxygen, तो मैं बोल रही हूँ 16 AMU और एक तरफ मैं बोल रही हूँ 16 ग्राम. So mind it, 16 AMU is the mass of one atom of oxygen, while 16 gram is the mass of 1 mole atoms of oxygen. Likewise for all the atoms. तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, so if I say hydrogen का atomic mass is 1 AMU, then 1 AMU is the mass of one atom of hydrogen, while 1 gram is the mass of 1 mole atoms of hydrogen. यही सेम चीज अप्लाई होती है when we talk about molecules. So now if I say for water, the molecular mass is 18 AMU, then 18 AMU is the mass of one molecule of water. One molecule of water, while 18 gram is the mass of 1 mole of water molecules. मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम, while 18 AMU is the mass of 1 molecule of water. अब ये AMU क्या चीज है इसको भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है. चलिए नाउ सो मैं अगेन ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले रही हूँ. सो आई सेड कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम. ठीक है, ये हम यूज करते हैं, ये आपको पता भी है. ओके, नाउ इट इज 16 ग्राम, राइट. सो 16 ग्राम कितने का मास है? दिस इज इक्वल टू 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास है, राइट. एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास है. ठीक है, सो अगर मुझे एक एटम का मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको उल्टा लिखती हूँ. सो इफ 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना वे करते हैं ये? They weigh equal to 16 gram, then one atom of oxygen will weigh how much? 16 upon 6.023 into 10 raised to the power 23. ठीक है, अब मैं इसको अगर एक्चुअली कैलकुलेट करूं इस वैल्यू को, राइट. सो अगर मैं इसको से फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट द एक्चुअल मास ऑफ मतलब एक एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स. ठीक है, तो मैं इसको ग्राम्स में कैसे निकालूंगी? मैं यहाँ से 16 को 6.023 से डिवाइड कर देती हूँ, मतलब मैं इस कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ. ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 6.023 इज इक्वल टू 2.656 into 10 raised to the power minus 23 grams.
1 second, 16 divided by 6.023 is equal to, yes, so it is 2.656 into 10 raised to the power minus 23 ग्राम्स आ गया. ठीक है, ये एक एटम का मास आ गया. लेकिन मैंने बोला था एक एटम का मास इज इक्वल टू 16. मैंने क्या बोला था? आई सेड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU. लेकिन मैंने तो ये वैल्यू निकाल दी एक एटम के मास की. वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का मैंने कितना वेट निकाल दिया? I calculated it as this value. Now ये वैल्यू उसके बराबर कैसे है? मतलब इसको हम 16 AMU कैसे लिख सकते हैं? This is equal to 16 AMU. ये कैसे लिखते हैं? सी इतनी इस वैल्यू को रिमेंबर करना, याद करना इज क्वाइट टफ फॉर ऑल द एटम्स. सो ऐसी वैल्यूज जिनके बहुत सारे हाई एक्सपोनेंशियल पावर्स होती हैं, उनको याद करना इज क्वाइट टफ. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 16 AMU कैसे बनाया? इसको हमने 16 AMU ऐसे बनाया, ये देखिए यहां से. सो मैंने अभी लिखा था मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 divided by 6.023 into 10 raised to the power 23. ये क्या था? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो बिल्कुल बेसिक मैथ से आया हमारा. ठीक है, सो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, this is equal to 16 into 1 divided by 6.023 into 10 raised to power 23. एंड जो ये वैल्यू है, ये जो 1 अपॉन ये आई है, मैं 16 छोड़ देती हूँ, मैं 1 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 को सॉल्व करती हूँ. तो ये वैल्यू जो आएगी, ये आएगी 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24. ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो वैल्यू है, दिस इज नथिंग, दिस इज 1 AMU. क्योंकि नाउ इसको मैं ऐसे लिख दूं 16 AMU. दैट मीन्स, मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रही हूं, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम, that is the value of 1 AMU. so इस तरह से हमने मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम को 16 AMU लिख दिया. AMU को हमने जो मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमने 1 AMU बोल दिया, और that's how I simplified the things and made it one atom of oxygen is equal to 16 AMU. Likewise हम सबके लिए कर सकते हैं, सबके लिए ये आई हुई है. कैसे? so let us go for किसकी बात करते हैं अब हम? लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन या कार्बन ले लेते हैं. चलिए कार्बन की बात करते हैं. सो 12 ग्राम कितने एटम्स का मास है? 1 मोल का. एंड 12 AMU होगा 1 एटम का, राइट? सो ये कैसे आया? नाउ 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना है? weigh how much? 12 gram. So 1 atom of carbon will weigh how much? 12 upon 6.023 into 10 raised to the power 23. So 12 into 1 upon 6.023 into 10 raised to the power 23. So ये क्या आया था? मैंने अभी बताया था, ये क्या था? 1.67 into 10 raised to power minus 24. एंड ये क्या चीज थी? ये था AMU. so this became 1 AMU, right? so because 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram is equal to 1 AMU. so इसका मतलब 12 into this value is equal to 12 AMU. So likewise for all the molecules, likewise for all the atoms, अगर मैं 18 ग्राम वाटर का molecular mass बोल रही हूँ, तो that means I'm talking about 1 mole molecules of water का mass. So एक मोल का अगर 12 वाटर के केस में अगर एक मोल का 18 ग्राम है, तो 18 AMU विल बी द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो AMU की वैल्यू क्या होती है? ये होती है AMU की वैल्यू. अब जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ा है, उनको एक्चुअली पता है कि AMU कैसे आता है. जब हम डेफिनेशन करते हैं ना मोल की, जब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वहां से आता है. बट मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ. आई डोंट वांट टू टच ऑल द थ्योरी पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, बट मैं एक थोड़ी आपको
क्लैरिटी देने के लिए AMU और ग्राम में इन टर्म्स ऑफ मासेस, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट इज AMU, हाउ इज दैट 1 AMU is the mass of 1 atom of hydrogen, while 1 gram is the mass of 1 mole atoms of hydrogen, or 12 AMU is the mass of 1 atom of carbon, while 12 gram is the mass of 1 mole atoms of carbon. In the same way, 18 AMU is the mass of 1 molecule of water, while 18 gram is the mass of 1 mole of water molecules. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एक्चुअली पूछे कोई कि एक एटम का मास निकालो, तो आप डेफिनेटली उसको AMU में नहीं लिखोगे. मतलब इफ दे से कि द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, सो आप उसको सीधा 12 AMU कभी नहीं लिखोगे. व्हाट यू विल डू, यू विल सॉल्व दिस, यू विल कैलकुलेट द एक्चुअल मास इन ग्राम. सो आपको ये एक्चुअली ग्राम में लिखना होता है, बट मैंने आपको सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए बताया है कि AMU और ग्राम में क्या डिफरेंस है. But if you have been asked to calculate one mass of one atom of any element, तो आप उसको इस वैल्यू को एक्चुअली कैलकुलेट करोगे इन ग्राम्स, एंड दैट इज द एक्चुअल मास इन ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. तो चलिए इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. सो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम. मैंने अभी बोला ना कि हम अभी क्या करेंगे, एक्चुअली मास निकालेंगे एक एटम ऑफ कैल्शियम का. नाउ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, एंड कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज व्हाट, it is equal to 40 gram. Now 40 gram is the mass of how many atoms of calcium, 1 mole. That means 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of calcium weigh how much, 40 grams. अब आपको ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरी पिछली जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं उसके बेसिस पे, बट स्टिल आई विल डू फॉर यू. सो if 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms of calcium weigh how much, 40 grams, then 1 atom of calcium will weigh, 1 atom of calcium will weigh how much, 40 upon 6.023 into 10 raised to power 23. अब आपने इसको 40 AMU नहीं लिख देना, so you will calculate the actual value, you will divide 40 by 6.023 and it will come out to be 6.64 into 10 raised to power minus, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, 23 gram. So this is the mass of 1 atom of calcium. राइट. सेकंड क्या बोला है हमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. अब उसके लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कैलकुलेट करिए. सल्फर का क्या होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 2 into 16, सो दिस इज इक्वल टू 64. और ये जो 64 आया, आई मीन 64 ग्राम्स आएगा, दैट इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सो इफ 6.023 into 10 raised to power 23 molecules of sulfur dioxide weigh how much, is equal to 64 grams, then 1 molecule of sulfur dioxide will weigh how much, 64 upon 6.023 into 10 raised to power 23. Again you will calculate it. 64 को डिवाइड कीजिए 6.023 से, ये आ जाएगा 10.63 into 10 raised to power minus 23
grams. So this is the mass of actual mass of one molecule of sulfur dioxide, and it makes sense. एक एटम या एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली वे इट, तो उसका मास भी तो उतना ही कम होगा ना. हाउ कैन यू से कि 64 ग्राम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाई? उनको लगता है कि मॉलिक्यूलर मास दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का, सो दैट मींस 64 ग्राम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. नो, 64 ग्राम इज क्वाइट अ वैल्यू. So don't get confused. 64 gram is the mass of 1 mole molecules of sulfur dioxide. जबकि एक मॉलिक्यूल का मास तो ऑब्वियसली बहुत 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 कम आएगा, बिकॉज एक मॉलिक्यूल बहुत बहुत लाइट होता है. आई कैन नॉट इवन से इन वर्ड्स. तो इतना लाइट होगा तो उसका मास भी उतना कम आएगा, राइट? तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल एटम्स ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 क्यों? क्योंकि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13, 14, राइट? द कॉमन वन इज 12. सो तो यहाँ पे इन्होंने लेकिन मेंशन कर दिया कि भाई हम 12 की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें बताओ कि 0.5 मोल एटम्स में कार्बन 12 के कितने एटम्स होते हैं. अब अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं अलग अलग कार्बन के आइसोटोप्स में, लाइक 12, 13, 14, तो वो तो 1 मोल में सेम ही रहेंगे, क्योंकि आइसोटोप जो वेरी करते हैं दे वेरी इन दी मासेस. 12, 13, 14 क्या है? वो उनके एटॉमिक मासेस हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स की. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अगर ये 12 बोलते हैं, 14 बोलते हैं, या कोई और आइसोटोप बोलते हैं कार्बन का, तो वो तो 0.5 मोल में उतने ही आएंगे, बिकॉज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, be it 12, be it 13, be it 14, it will be equal to Avogadro numbers. हाँ, अगर ये masses की बात करते हैं, एटॉमिक मास पे आ जाते हैं हम, अगर उसको यूज करना होता then it would have been different. पर चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं number of atoms in 0.5 mole atoms of carbon. Now how many atoms are there in 1 mole atoms of carbon? 1 mole atoms of carbon कितने होते हैं? कार्बन 12 में स्पेसिफिकली लिख रही हूँ. दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 into 10 raised to power 23 atoms. So therefore 0.5 मोल एटम्स में कितने होंगे एटम्स? 0.5 into 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms, that means इसके हाफ हो जाएंगे, तो that will be 3.011 something into इसको 10 raised to power 23 atoms, राइट? सो ये हो जाएंगे इतने नंबर ऑफ एटम्स इन 0, मतलब उसके हाफ हो जाएंगे. ऑब्वियसली 0.5 मोल का मतलब 1 मोल का हाफ. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में, ठीक है. नाउ सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अभी लास्ट न्यूमेरिकल में किया है 32. सो यानी कि 32 ग्राम कितने एटम्स का मास है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का. सो हम 3.2 ग्राम के लिए तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सो इफ 32 grams is the mass of 6.02 ही ले लेते हैं. 3 हम करते ही नहीं, इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम एवोगाड्रो नंबर 6.02 ले लेते हैं into 10 raised to power 23 atoms of sulfur. If 32 gram is the mass of इतने atoms of sulfur, then 3.2 gram is the mass of 6.02 into 10 raised to power 23 upon 32 into 3.2. यहाँ से डेसिमल हटाइए, इसको कैंसल आउट करिए. So this is equal to 6.02 into 10 raised to power 22 atoms of sulfur. ठीक है, बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल्स. अब नेक्स्ट देखो
Calculate the number of atoms in 18 gram of glucose. Now glucose is not an atom, it is a molecule. ठीक है, सो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के. फिर हम देखेंगे कि अगर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, तो फिर हम निकालेंगे कि जितने भी 18 ग्राम ग्लूकोज में मॉलिक्यूल्स आए ग्लूकोज के, उसमें कितने एटम्स आए. सो आई विल एक्सप्लेन यू. जैसे मान लो मैं इजी कोई एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है, मैं से आई टॉक अबाउट वाटर. नाउ मुझे पता है वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स इन टोटल, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के. तो अगर ये मुझे बोले कि निकालो भाई वाटर के 8 ग्राम्स में कितने एटम्स है टोटल, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ये निकालूंगी वाटर के 8 ग्राम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. अब मुझे पता है वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, राइट. सो मैं क्या करूंगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स आए वाटर के 8 ग्राम में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूंगी. सो यहाँ पे क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम या ऑक्सीजन के, दे आर सेइंग नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल इतने ग्राम में, तो हमें सारे एटम्स लेने हैं. अब बात करते हैं जो हमें पूछा है ग्लूकोज की. नाउ व्हाट इज ग्लूकोज, तो पहले तो ग्लूकोज का सबसे पहले हमें वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. नाउ ग्लूकोज इज C6H12O6. सो ग्लूकोज के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के. सो ऑल इन ऑल देयर आर 24 एटम्स, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 18 ग्राम ऑफ, हमें यही पूछा है ना, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं, हम 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं ग्लूकोज के कितने हैं. फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है कि दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, अभी मैंने बताया कंटेन्स कितने एटम्स, 12 कार्बन के, ठीक है, फिर 6 कार्बन के, 6 कार्बन के, देन 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के. सो कितने हो गए ये टोटल, दे बिकम 24 एटम्स. ठीक है, तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम्स हैं ये पता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकाल लेते हैं. सो उसके लिए अगेन वी शुड नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ glucose. So what is the molecular mass of glucose? Molecular mass of glucose निकालते हैं, वो कहाँ से आएगा, वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को ऐड करके आएगा. सो 6 कार्बन एटम्स इंटू 12 हाइड्रोजन एटम्स इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, दिस इज इक्वल टू 180. सो 180 आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, विच इज द मास ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो इफ 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of glucose weigh how much, 180 grams, then 1 molecule of glucose will weigh 180 upon, सॉरी हम उल्टा कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, हमें 18 ग्राम ग्लूकोज में निकालना है. आई एम सो सॉरी, सो लेट मी डू इट अगेन. हमें तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, तो हमें ये थोड़ी निकालना है कि एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का. पहले हमें निकालना है 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स है. सो उल्टा करेंगे. सो इफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज contains how many molecules, Avogadro number, that is 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of glucose. तो हम क्या निकालेंगे कि then 18 gram of glucose contains 6.02 into 10 raised to the power 23
अपॉन 180 इंटू 18, सो ये कैंसल आउट हो गया 10, यहाँ से आ गया 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। और अब हमें ये पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में क्या होंगे, 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो इफ वन मॉलिक्यूल of glucose contains how many atoms, 24 atoms, then 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of glucose will contain 24 into 6.02 into 10 raised to power 23 नहीं है 22 निकालने हैं हमने 22. So this value will be equal to 1.448 into 10 raised to power 24 एटम्स। सो इस न्यूमेरिकल को हम ऐसे करेंगे। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो भी सिमिलर है। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू दैट। तो मैं अभी प्रीवियस पेज पे जा रही हूँ और मैं इसको इरेज कर रही हूँ अपने इन सॉल्व न्यूमेरिकल्स को, so that I can just a second, so that I can solve the fourth one. So fourth हमें क्या बोला है, yes, fourth one. So fourth is calculate the number of atoms in 0.20 mole molecules of oxygen. Now we know it very easily that one molecule of oxygen contains how many atoms, 2 atoms, contains 2 atoms of oxygen, है ना, O2, 2 atoms of oxygen, राइट। हमें बोला है 0.20 मोल मॉलिक्यूल्स। तो पहले तो 0.20 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, जैसे हमने प्रीवियसली किया, वो निकालते हैं। सो वी नो दैट 1 मोल मॉलिक्यूल्स of oxygen contain how many molecules, Avogadro number, that is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen, right? Then therefore कितने मोल हैं, 0.20 मोल molecules of oxygen will contain 0.20 into 6.023 into 10 raised to power 23, which will be equal to 1.204 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen, right? So हमारे पास आ गए number of molecules in 0.20 mole molecules of oxygen. Now one molecule of oxygen contains 2 atoms, so इतनों में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। So one molecule of oxygen contains 2 atoms. Therefore 1.204 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen will contain 2 into 1.204 into 10 raised to power 23, that is 2.408 into 10 raised to power 23 atoms. So this is how we solve this numerical. चलिए let's move on to the next one. Calculate the mass of sodium which contains same number of atoms as are present in 15 gram of calcium. Atomic masses of calcium and sodium are given.
तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है मास ऑफ सोडियम। किसका, कौन से एटम्स का, कितने एटम्स का, सो उतने एटम्स का एज आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो बेसिकली 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ठीक है, वो एटम्स जितने भी होंगे, सपोज एक्स है, एक्स एटम्स है, ठीक है, हमें उन एक्स एटम्स के लिए क्या करना है, हमें मास ऑफ सोडियम निकालना है। मतलब हमें ये मानना है कि उतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हैं जिनका हमें मास निकालना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ एक्स एटम्स ऑफ सोडियम, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। बट ये हम स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते, वाई, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स, एक्स क्या है। देखो एक्स एटम्स ऑफ सोडियम का वेट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 23 ग्राम कितने एटम्स का वेट है, 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का वेट अगर 23 ग्राम्स है, तो एक्स एटम्स ऑफ सोडियम का वेट तो वहीं से आ जाएगा, लेकिन पहले हमें एक्स एटम्स तो निकालने पड़ेंगे ना। सो फर्स्ट वी विल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल calculate number of atoms in 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो बेसिकली हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो सपोज ये मान लेते हैं y है, मास ऑफ x एटम्स y है, तो हमें पहले x निकालना पड़ेगा फॉर y, ऑब्वियस सी बात है ना। सो दैट इज हम क्या निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, हम x कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता है कि 40 ग्राम कैल्शियम का एटॉमिक मास दिया 40 ग्राम, सो 40 ग्राम इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, सो 15 ग्राम इज द मास ऑफ how many calcium atoms, easily could be we can find out, right? So if 40 gram is the mass of 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of calcium, then 15 gram is the mass of 6.02 into 10 raised to the power 23 upon 40 into 15, 5 3s are 5 8s are, then 2 4s are 3.01, तो ये अपॉन सॉल्विंग आ जाएगा 2.25 into 10 raised to the power 23 atoms. So ये किसकी वैल्यू आई हमारी, x की, because for y we should know x, so therefore x क्या आ गया is equal to 2.25 into 10 raised to the power 23. so basically हमें इतने सोडियम एटम्स का मास निकालना है, कैल्शियम के जो एटम्स आए उतने ही एटम सोडियम के हैं, तो हमें we have to get, now we will calculate, now we will calculate y, y क्या, that is the mass of x atoms which is equal to 2.25 into 10 raised to the power 23 atoms of sodium. तो अब हम ये निकालेंगे, ठीक है। नाउ वी नो 23 ग्राम इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, atomic mass of sodium is equal to 23 grams. So if 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of sodium weigh how much, 23 grams, so हमें कितने का निकालना है, 2.25 into 10 raised to the power 23 atoms of sodium will weigh 23 upon 6.02 into 10 raised to power 23 multiplied by
2.25 into 10 raised to power 23. So upon calculation, this will come out to be 8.59 grams. Okay, so ये हमारा आ गया आंसर. So that is the mass of 2.25 into 10 raised to power 23 atoms of sodium. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं. सेम न्यूमेरिकल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया था. यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. चलिए, what volume is occupied at NTP by 1.4 gram of nitrogen, 6.023 into 10 raised to power 21 molecules of oxygen and 0.2 mole of ammonia. अब हमें इसमें वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप यूज करना है ना. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1 मोल is equal to 6.02 into 10 raised to power 23. If I talk about, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात है. बिकॉज हम अगर गैस की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2. नाइट्रोजन गैस इज N2. सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of nitrogen. And in terms of volume, this is equal to 22.4 liters of nitrogen at NTP. Also, in terms of mass, 1 mole is equal to molecular mass ऑफ नाइट्रोजन. अब हमें इनमें से कौन सा रिलेशनशिप चाहिए? हमें ग्राम और वॉल्यूम में चाहिए. सो दैट मीन्स हमें ये नीचे वाले रिलेशनशिप चाहिए. 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन. सो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? 28 ग्राम्स, है ना. 14 का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम. सो दैट मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन occupies 22.4 liters of volume at STP, है ना. ये दोनों रिलेशनशिप आ गए ना, ये वाले. सो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम रिलेटेड है बिकॉज वो सब 1 मोल के बराबर है. सो देयरफॉर इफ 28 gram of gas, of which gas? Of nitrogen gas we are talking about. Of nitrogen gas occupies, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? एट एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी. हमें कितनी की निकालनी है? 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 अपॉन 28 इंटू 1.4. यहाँ से डेसिमल हटाओ. ये बहुत इजी कैलकुलेशन है. ये हो गया हमारा कैंसल आउट. 1.4 से ये आ जाएगा 1 नॉट 4 2. सो ये आ जाएगा 1.12 लीटर्स. सो सबसे पहले तो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया, तो आपको नाइट्रोजन एटम्स नहीं लेने, आपको खुद सोचना है. हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. सो वॉल्यूम का मतलब हम नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2. नाइट्रोजन गैस इज N2. नाइट्रोजन एटम्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन गैस विच इज N2. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज दी कितने मॉलिक्यूल्स? नेक्स्ट इज 6.023 into 10 raised to power 21 molecules of oxygen. तो यहां से अब रिलेशनशिप कौन सा निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का. सो इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to power 23 molecules, it is also equal to 22.4 liter of oxygen gas at NTP. It is also equal to
मॉलिक्यूलर मास, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमें पूछा है मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम में, तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, तो हमें इसको यूज करना है। यानी कि 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen occupy 6.023 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, into 10 raised to power 23 molecules of oxygen occupy how much? 22.4 liter volume at STP। तो हमें कितने की निकालनी है? 6.023 into 10 raised to power 21 molecules of oxygen will occupy 22.4 upon 6.023 into 10 raised to power 23, 6.023 into 10 raised to power 21, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 22.4, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहीं साइड पे कर देती हूँ, 22.4 अपॉन 100, ये आ जाएगा 0.224 liters. So this is the volume occupied by 6.023 into 10 raised to power 21 molecules of oxygen. Now third one is 0.2 moles of ammonia. Now we know that 1 mole of ammonia occupies how much volume at STP? 22.4 liter volume at STP. तो यहाँ से 0.2 mole of ammonia will occupy 0.2 into 22.4 liter, which is equal to 4.48 liter volume at STP. I think आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी on these basic numericals after doing these न्यूमेरिकल्स। मोल कॉन्सेप्ट पे काफी क्लैरिटी आ गई होगी आफ्टर गोइंग थ्रू दीज। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। सो पहले तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज क्या होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, बड़ी ही हाइपोथेटिकल बात कही है इन्होंने वैसे। Avogadro number of rupees is 6.023 into 10 raised to power 24 रुपीज को स्पेंड करने में कितने साल लगेंगे अगर 10 लाख रुपीज पर सेकंड स्पेंड किए जाते हैं? 10 लाख रुपीज, 10 lakh rupees are spent in 1 second. So 10 lakh rupees का मतलब हो गया 10 raised to power 6 rupees पर सेकेंड स्पेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, सो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल, बहुत ही बेसिक है, इसमें कैलकुलेशंस दी हैं बस। दिस न्यूमेरिकल हैज कैलकुलेशंस, दैट्स इट। सो इफ 10 raised to power 6 rupees are spent in how much seconds? 1 second, then Avogadro number of rupees, that is 6.24 लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी 23 rupees are spent in 1 by 10 raised to power 6 into 6.023 into 10 raised to power 23, which is equal to 6.023 into 10 raised to the power 17 seconds। हमें बोला ईयर्स, तो सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? पहले सेकंड को मिनट्स में कीजिए, तो सेकंड्स टू मिनट्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 पॉइंट जो वैल्यू आई है ये 10 रेज टू पावर 20, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 17 को डिवाइड कीजिए 60 से, मिनट्स को कन्वर्ट कीजिए आवर्स में। अगेन एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 17 को 60 तो पहले ही था, एक और 60 से डिवाइड कीजिए। फिर आवर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए
एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻17 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 24 से डिवाइड कीजिए। फिर डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कीजिए। 17 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे ये सारी कैलकुलेशन, तो इससे आएगा 1 पॉइंट, ये ईयर्स बन जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इतने मिनट्स, दिस इज इतने आवर्स, this is itne days, and this is itne years. So this value will come out to be 1.909 into 10 raised to power 10 years. So Avogadro numbers of rupees को, उतनी अमाउंट को स्पेंड करने के लिए at the speed of 10 lakh rupees per second will take this many years. ठीक है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था, बट मैंने स्टेप्स में कर दिया ताकि और इजी हो जाए आपको समझना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X weighs 6.644 into 10 raised to power -23 gram. Calculate the number of gram atoms in 80 kg of it. Now एक और चीज आ गई यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब ये ग्राम एटम्स क्या चीज है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। तो एक और रिलेशनशिप, एक और नई बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे मोल को हम एवोगाड्रो नंबर में की टर्म्स में लिखते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में लिखते हैं, मासेस के टर्म में लिखते हैं, इन द सेम वे अगर मोल को एटम, ग्राम एटम की टर्म्स में लिखा जाए तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स। Also, if we talk about molecules, 1 mole is equal to 1 gram molecules. क्योंकि यहाँ atoms की बात हो रही है, तो I have written 1 gram atom is equal to 1 mole. अब इन्होंने बताया क्या है और पूछा क्या है? इन्होंने कहा है कि एक एटम ऑफ X weighs 6.644 into 10 raised to power -23 grams. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं 80 kg में कितने ग्राम एटम्स होंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम 80 kg में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। पहले ग्राम एटम्स की बात तो बाद में करेंगे, इस चीज को हम बाद में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 80 kg। ठीक है, बिकॉज देखो यहां से 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स भी तो आएगा। सो एटम्स और ग्राम एटम का रिलेशनशिप हमारे पास है, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड ग्राम एटम। तो अगर मैं 80 kg में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं तो मैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स तो बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 80 kg ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो इफ 80 kg को मैं 8 ग्राम्स के टर्म में 80 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ग्राम्स लिखूंगी। सो इफ 6.644 इंटू 10 रेज टू पावर -23 ग्राम is the mass of how many atoms? 1 atom of element X, then 80 into 10 raised to power 23 gram is the mass of how much? How many atoms? 1 upon 6.644 into 10 raised to power -23 into 80 into 10 raised to power 23. So पहले तो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 12.04 into 10 raised to power 26 atoms of X. अब इतने एटम्स ऑफ X में हमें ग्राम एटम्स निकालने हैं। हमें पता है कि इतने एटम्स ऑफ किसी भी एलिमेंट में 1 ग्राम एटम होता है, तो हम इतने एटम्स ऑफ X में नंबर ऑफ
ग्राम एटम्स निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। जो मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा है, आई नो दैट इफ 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of x, एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का, बट यहाँ पे x की बात हो रही है, ऑफ x इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स, देन कितना आया हमारा 12.04 into 10 raised to power 26 atoms of x is equal to how many gram atoms, 1 upon 6.023 into 10 raised to power 23 into 12.04 into 10 raised to power 26. So अगर आप इसको solve करेंगे, because I'm not doing it right now, I have done it already, it is equal to 199 gram atoms आएगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अब एक नई बात, ग्राम एटम्स, जिनको अभी तो कोई कंफ्यूजन थी ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स में, तो ग्राम एटम इज नथिंग, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 gram molecule is also equal to 1 mole if we are talking about molecules, and here we are talking about atoms. So 1 gram atoms is equal to 1 mole is equal to Avogadro number of atoms. ठीक है, सो बच्चे बहुत ज्यादा ग्राम्स ग्राम्स बार बार आ रहा है, दे गेट कंफ्यूज्ड, सो देयर इज नो नीड टू फॉर एनी कंफ्यूजन, बिकॉज 1 gram atoms 1 mole and Avogadro number is same. चलिए, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द वीडियो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स present in 5.60 liters of ozone at NTP. ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। हमें क्या निकालना है, पहले तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालेंगे, फिर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे इतने लीटर्स ऑफ ओजोन में, क्योंकि हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, 3 एटम्स ऑफ, नॉट इक्वल टू, एक्चुअली इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ये पता चल जाए कि 5.60 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उससे निकाल लेंगे अपने नंबर ऑफ एटम्स, और हमें पूछा भी है। सो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन calculation of number of molecules in 5.60 liters of ozone at NTP. Now, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है एनटीपी पे। हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस, यहाँ पे ओजोन की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन ऑक्यूपाई हाउ मच, 22.4 लीटर्स, है ना। सो बेसिकली 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एट एसटीपी। सो इतने लीटर ऑफ कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है, वी कैन इजीली कैलकुलेट। सो इफ 22.4 liter is the volume occupied by 6.023 into 10 raised to power 23 molecules of ozone, then 5.60 liter is the volume occupied by how many molecules of ozone, that is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 upon 22.4 into 5.60, और ये अपॉन कैलकुलेशन आएगा 1.505 समथिंग, मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ, इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। अब हमें सेकंड में क्या करना है,
नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इसमें, ठीक है। सो सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, कौन से एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के ही है ना ऑब्वियसली इसमें, तो नंबर ऑफ एटम्स इन कितने मॉलिक्यूल्स आए, 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन में। नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन contains 3 atoms. So 1.505 into 10⁻23 molecules of ozone will contain how many molecule atoms, 3 into 1.505 into 10⁻23, और ये आ जाएगा कैलकुलेशन पे 1.505 into 3, this is equal to 4.515 into 10⁻23 atoms, right? So this was the last numerical of this video on mole concept. I will be uploading another video on mole concept. Meanwhile practice कीजिए, ये बहुत ही basic numericals हैं on mole concept, but इनकी clarity के बिना you cannot go ahead in chemistry, because you know chemistry में mole concept is involved in almost every aspect of chemistry. So please go through them so that other numericals on other topics become easier for you. दो ये बहुत बेसिक हैं, बट इनके बिना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ दीज बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट यू कैनॉट गो अहेड, right? So please guys do practice them and stay tuned for my next video on mole concept.